Good morning students. Today we will focus on our rest of the transcontinental railway lines. First of all, Union Pacific Railway. Union Pacific Railway lies in USA. The transcontinental railway line which lies in USA is known as the Union Pacific Railway. The western terminal station of this railway line is San Francisco and eastern terminal station is New York. This is the western terminal station and New York is the eastern terminal station. The main station between these two are Sacramento, Austin, Evans, Omaha, Chicago, Cleveland, and last is the New York. These are the main stations of the USA transcontinental railway line, which is Union Pacific Railway. Now, in the north of the USA, you can see the Canada. In the eastern side, there is Atlantic Ocean, southern Mexico and Gulf of Mexico, and the western side Pacific Ocean lies. So it has very strategic boundary or strategic geographical condition. All the trades carry through the Pacific Ocean and through the Atlantic Ocean with the Western European countries and the Asian countries also. And this railway line helps to transport different types of material from San Francisco to New York, which are ores, paper, grain, chemicals and machineries. All these materials are transported by this railway line through the San Francisco to New York. This is the longest railway line of USA, which connects its two ends. Here you can see the western end and the easternmost end, New York. This is all about our USA. Now come to the Australia. Here you can see the roughly map of Australia. In the northwestern side there is Timor Sea, northeastern side Coral Sea. In the southeastern side Tasman Sea, because it is named after Tasmania, and in the south of the Australia Southern Ocean, and in the western part there is Indian Ocean. So it is a geographical situation of Australia. Here you can see the transcontinental railway line which runs from Perth to Sydney. So Perth is its western terminal station and Sydney is its easternmost terminal station. So it runs from Perth to Sydney. It connects its two ends, which are Perth and Sydney. The main station between these two are Kalgoorlie, फॉरेस्ट. फिर यहाँ पर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये जो है हमारे कोस्टल एरियाज और पोर्ट एरियाज हैं, पोर्ट अगस्ट एंड पोर्ट पायरेल, ब्रोकन हिल्स, पेटरब्रो, ब्रोकन हिल, रोटो, कॉक्स, सिडनी टू एल्ब्रे एंड लास्ट इज मेलबोर्न. तो ये सिडनी से मेलबोर्न तक भी जाती है. तो दीज आर द मेन स्टेशन ऑफ Australian transcontinental railway line. Now, what is important thing about the transcontinental Australian railway line? That this railway line runs on different gauges. We already read about the different gauges. There are broad gauge, medium gauge हमने पढ़े थे. तो यहाँ पर different gauges जो हैं वो लाई करते हैं. अब different gauges होने के कारण कहीं पर जो रेलवे ट्रैक जो है नैरो है, फिर रेलवे ट्रैक जो है जो ब्रॉड आ गया. तो इससे क्या करना पड़ेगा हमें मटेरियल को, जो मटेरियल इस रेलवे लाइन से आ रहा है इस रेलवे लाइन पर पहुंचने के बाद उसे ट्रेन को चेंज करना पड़ेगा. फिर से सपोज जो है रेलवे लाइन ट्रैक जो है मीडियम साइज आ गया,
तो फिर से जो है उस रेल के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसपोर्ट को, जो भी मटेरियल है उसको हमें दूसरी ट्रेन में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इससे बार बार जो है शिफ्टिंग करनी पड़ती है, जिससे हमारा यहाँ पर जो टाइम है डेस्टिनेशन तक पहुँचने का टाइम है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अगर इसी चीज़ को अगर हम एक सिंगल गॉश पर रन करें तो ये क्या है कि अब कितना टाइम लगता है किसी भी गुड्स को पर्थ टू सिडनी पहुंचने में अब 15 डेज का टाइम लगता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट गॉजेस। लेकिन अगर यही चीज़ जो है वो सिंगल गॉश पर होती तो दैट टाइम कैन बी रिड्यूस टू द 5 डेज। यही सामान 5 दिन के अंदर जो है वो वहाँ तक पहुँचाया जा सकता था। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो हमारे क्या हो जाती है, टाइम जो है वो हमारा एक्सटेंड हो गया है ड्यू टू द डिफरेंट गॉजेस। अब टाइम जितना ज़्यादा लगेगा किसी भी चीज़ को पहुंचाने में तो उतना ही उस पर क्या हो जाएगी, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। इससे जो है यहाँ पर गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। सो अब इस प्रॉब्लम को सेटल डाउन करने के लिए रेल स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी जो है वो यहाँ पर एस्टैब्लिश की गई है, जिससे इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया में एक और जो है वो हमारी कॉन्टिनेंट एक और मेन रेलवे लाइन है दैट कनेक्ट्स एडेलेडे एंड एलाइज स्प्रिंग टू डार्विन बेडम लाइन। सो दीज आर द टू main railway lines in the Australia, but the most important is Australian Transcontinental Railway Line which runs Perth to Sydney। अब ये जो था वो तो हमारे मेन थे जिसके ऊपर आपके मैप क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी आपको कंप्रीहेंशन टाइप में पूछा जा सकता है। सपोज इस तरीके से आपको मैप आएगा, मे भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया ना लिखा हो तो आपको बताना पड़ेगा आइडेंटिफाई द transcontinental railway line, then you have to recognize the map and you have to answer that this is an Australian transcontinental railway line which runs। अब पूछा जा सकता है आपसे वेस्टर्न टर्मिनल स्टेशन कौन सा है, ईस्टर्न टर्मिनल स्टेशन कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, Perth is the western terminal station of this railway line and the Sydney is the eastern terminal station of this railway line। तो जितना भी जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, दिस थ्रू दिस रेलवे लाइन। एंड यू कैन सी यहाँ पर भी आपका कोस्टल है, यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया जो है एक आइलैंड की तरह है, तो यहाँ पर जो है सारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो थ्रू द पोर्ट्स होता है। और पोर्ट्स को जो है वो किससे कनेक्ट किया गया है, यहाँ भी आप देख सकते हो 2 पोर्ट्स को कनेक्ट किया गया है। मेलबोर्न भी इसका एक पोर्ट है, सिडनी भी है। तो इन सभी पोर्ट एरियाज को इस रेलवे लाइन से कनेक्ट किया गया ताकि इस ट्रांसपोर्टेड मटेरियल को हिंटरलैंड तक इजीली कैरी किया जा सके। इन रेलवे लाइंस के साथ साथ हमारे पास एक और रेलवे लाइन है दैट इज द ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे लाइन which runs in the Europe between the Paris and Istanbul in Turkey। Paris lies in Europe and Turkey is in both Europe and Asia। Maximum part of Turkey lies in Asia, 97% part of the Turkey lies in Asia। Because we don't have the map question about this railway line, so we will only a quick view about this railway line। Suppose this is a Europe, यहाँ पर आपका पेरिस है, पेरिस से ये टर्की तक जो है ये रेलवे लाइन जाती है। डिफरेंट स्टेशंस जो हैं इसके बीच में लाई करते हैं। अब इसका जो मेन स्टेशंस हैं वो हैं इसमें बीच में प्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट एंड बेलग्रेड। दीज आर द इम्पोर्टेंट स्टेशन बिटवीन द पेरिस एंड इस्तांबुल एंड this journey can be carried through the London to Istanbul by this express। अब इस एक्सप्रेस से जो हमारा यहाँ पर लंदन है और ये इस्तांबुल है, यहाँ तक का टाइम जो है वो कितना हो गया है, 96 आवर्स। 96 आवर्स में लंदन से इस्तांबुल तक पहुँचा जा सकता है थ्रू दिस रेलवे लाइन। पहले इसको पहुँचने में सी रूट से, क्योंकि यूरोप से एशिया तक जाने में या यहाँ पर जो बीच में सी है उनके रास्ते से जाने में इसी चीज़ को कितना टाइम लग जाता था, 10 डेज का टाइम लगता था टू रीच फ्रॉम लंदन टू
Turkey or Istanbul, it takes 10 days from the oceanic routes, but now the time is reduced through this railway line to 96 hours. अब हम यही जो डिस्टेंस है उसको कितने में कवर कर लेते हैं, 96 आवर्स में। इस रेल लाइन से जो मेन चीज़ें जो हैं ट्रांसपोर्ट होती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं, दैट आर चीज़, बैकॉन, ओट्स, वाइन, फ्रूट्स एंड मशीनरी। दीज आर द main commodities which are transported by this transcontinental railway line, that is the Orient Express. Now there is a one more proposal to build up a new transcontinental railway line which will run from Europe to Asia, जो यूरोप से लेके एशिया तक को कनेक्ट करेगी और कहाँ से कहाँ तक चलेगी, दैट विल बी इस्तांबुल टू, यहाँ पर आपने देखा इस्तांबुल से थाईलैंड तक जो है ये रेलवे लाइन जाएगी। तो इसको बनाने का अभी प्रपोजल चल रहा है। नाउ वी हैव दीज 5 ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे लाइंस एंड यू हैव टू प्रिपेयर इन every respect all the questions related to map and related to content. Have a nice day.